اور خبر تفصیل سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع کلگام میں ہوئے 2 انکاؤنٹرز میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے، جبکہ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کیا گیا۔ اس ضمن میں کلگام پولیس، فوج اور CRPF نے آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ SSP ڈاکٹر GV سندیپ چکرورتی نے کہا کہ دونوں آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کو اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ SSP نے کہا کہ آپریشنز میں عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا، جبکہ صاف و شفاف آپریشن عمل میں لائے گئے جس میں فوج اور CRPF نے اپنا تعاون دیا۔ SSP کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ضلع کلگام میں تقریباً 50 ملیٹنٹ مارے گئے، جن میں 10 غیر ملکی ملیٹنٹ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کام یہاں ملیٹنسی اور دہشت پھیلانا ہے، مگر جموں کشمیر پولیس مستعدی سے کام لے رہی ہے۔ Totally, we eliminated 3 Jaish-e-Mohammed terrorists. Of these 3, one was a Pakistani terrorist named Abu Huraira. Other 2 were local terrorists, namely Mama Shafiq Ganai from West Bhatpura and Asif Wani from Damal Hanjipura. It's a huge success for security forces in Kulgam. And in these operations, we have recovered a huge amount of arms and ammunition. Just I will give a brief details of these operations. With the sole intention of spreading terror in Pakistan, recruiting local youth and spoiling the minds of local youth, they came to Kashmir through illegal ways, and their main ambition to spread terror, and our forces are working hard to zero in them, and as I said, we'll ensure clean operations and prevent youth in joining the militancy, and we'll eliminate these terrorists as soon as possible to ensure peace in the area. Pakistan-based terror groups are spreading terror in Kashmir, and we JK Police have been developing the focused intelligence and ensuring clean operations along with Army and CRPF here. And just I want to repeat it, our main aim is safety and security of citizens and a dedicated, focused, surgical clean-up. وائٹ نائٹ کارپس اپنی گولڈن جوبلی منا رہی ہے۔ جموں کے نگروٹا میں فوج نے بچوں اور مقامی لوگوں کے لیے جدید ترین انفینٹری ویپن آرٹ کا اہتمام کیا۔ ڈسپلے میں دکھائے گئے ہتھیاروں میں سیکو اسپائنر رائفل، راڈار سیٹلائٹ ویپنری، ایئر کرافٹ آرٹلری اور مائن ڈیٹیکٹنگ ویپنری سمیت جدید مشین گن شامل ہیں۔ ڈاگ فائٹرز کا رنگا رنگ اور سرشار شو توجہ کا مرکز رہا۔ کلچرل بونانزا میں پیرا ٹروپرز کی طرف سے بینڈ اور فلائی پاس ڈسپلے رکھے گئے تھے۔ اس دوران ایک ڈمی کوئک ایکشن ڈرل بھی دکھائی گئی۔ پروگرام میں GOC وائٹ نائٹ کور لیفٹیننٹ جنرل مجندر سنگھ اور کمانڈ کے دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ GOC کا کہنا ہے کہ کھیل، تعلیم، ثقافت پروگراموں اور اسکالرشپ اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ VDCs اور گاؤں کے لوگوں کو اپنے دفاع اور جنگی تربیت پولیس فراہم کر رہی ہے۔ سرحد پر ڈرون کی دراندازی اور اسلحہ گرانے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے فوج نئی تکنیک متعارف کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں انتخابات کے موقع پر امن میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اور نہ ہی کوئی دراندازی ہونے دی جائے گی۔ فوج کے مطابق جموں کے لوگوں کی جانب سے ملیٹنٹوں کو کوئی حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں سوشل میڈیا کے ذریعے بنیاد پرستی ایک خطرہ بن رہا ہے، لیکن لوگوں کی مدد سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ To get youth into mainstream of the life is the agenda of the government, and Army is aligned towards that. Because if you are able to take the youth along with us in development, peace and prosperity, no evil enemy will be able to succeed in his agenda. So in that, our effort is on education front, is on sports front, as also in cultural fronts. Celebrate together. We are making efforts so that our youth understands the vibrancy or the guldasta of communities which is here. ابھی ریسنٹ پالیسی کے مطابق VDC کے جو کیٹیگریز ہیں وہ نئی ہو گئی ہیں، ان کی ایمولومنٹس بڑھ گئی ہیں، اور ہمارا اور پولیس کا تال میل کے ساتھ سبھی VDCs کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور ہمیں پکا امید ہے کہ گاؤں والے ہی VDCs کے ساتھ ہمارا کوشش میں شامل رہیں گے۔ سیکنڈ پرابلم از ٹو انشور دا سیفٹی، پیسفل ڈیولپمنٹ اینڈ سیف hinterland. Because in spite of stopping infiltration of LC, enemy has adopted infiltrating from different borders and sending terrorists inside our area to make it disturbed. So we have effective counter-terrorist grid
in which anybody, if is able to come inside also by other means than from LC, will eliminate him and ensure that the peace and stability of the region stays. ड्रोन की ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है या ड्रोन की स्पॉटिंग है वो इस एरिया में ज़्यादा हो रही है. हमारे एरिया में बहुत कम है, महीने में कभी 2-3 ड्रोन की स्पॉटिंग है ज़रूर, लेकिन वो ड्रोन हो सकता है कि दुश्मन रिकॉनेसेंस के लिए कर रहा हो. जबकि जो दूसरा एरिया है उसके अंदर जो ड्रोन्स पाए गए हैं उसमें नैरको भी पकड़ी गई है, हथियार भी पकड़े गए हैं. हमारा एरिया के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी इस कार्रवाई के लिए नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक प्लान बनाई है और हमारी इक्विपमेंट अभी आने वाली है जो कि ड्रोन को नाकाम कर पाकिस्तान का FATF का जो दबाव है. और तीसरा है जो जनरल असेंबली चल रही है, UN जनरल असेंबली. इन 3 फैक्टर की वजह से पिछले कुछ दिनों में ऐसा ज़्यादा उनका एफर्ट नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो दुश्मन फिर अपनी कोशिश करेगा और LOC के पार से इन्फिल्ट्रेशन हम उसके लिए अलाइव हैं. और हम अश्योर करते हैं कि हमारा जो ग्रिड है काफ़ी इफेक्टिव है. पिछले 2 साल से दुश्मन कोई इन्फिल्ट्रेशन हमारे एरिया में नहीं कर पाया. हम उसकी प्लान को नाकाम करेंगे और 100% श्योर करेंगे, चाहे नए लॉन्च पैड ले आए, चाहे पुराने एक्टिवेट कर ले, चाहे नए भर्ती कर ले, कुछ भी कर ले, वो उसका प्लानिंग है, वो कर सकता है. लेकिन हम भी रेडी डायनेमिक तरीके के साथ आपको एश्योरेंस देते हैं कि वाइट नाइट कोर के एरिया से किसी भी तरह का कोशिश इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम किया जाएगा. उसके लिए हमारी प्लान्स रेडी हैं और हम कभी भी उसको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे, जैसे कि पिछले 2 साल से हमने इस चीज़ को नाकाम रखा है. जो हमारे लोग हैं वो इसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो जो भी सपोर्ट है वो कश्मीर से आ रही है या जम्मू रीजन से बाहर से आ रही है. कंट्रोल किया हुआ है, पीस और शांति स्टेबिलिटी है. इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए हमारे को पब्लिक की और भी सपोर्ट मिलेगी, तो कभी भी दुश्मन इसमें नहीं कर पाएगा. तो आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें गोल्फ ग्राउंड में आए हैं. तो जो आर्मी के वेपन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उत्साही होती है कि हमारे जो देश के रक्षक हैं हमें हर कोई मुश्किल से बचाते हैं. अगर हम यहाँ पर इस जगह पर आ रहे हैं तो ये हमको प्रूव करता है कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा केपेबल है, और हमारी इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट. पुंछ के परेड पार्क से पुलिस की SOG ने एक खातून के कब्जे से IED बरामद की. पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश जारी है. तो यह अहम खबर पुंछ से आई है. पुंछ के परेड पार्क से पुलिस की SOG ने खातून को के कब्जे से IED बरामद की है और खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है. जम्मू कश्मीर BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में आइंदा साल मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है. अशोक कौल ने बांडीपोरा का दौरा किया. अशोक कौल ने बताया कि इस दौरे का मकसद सेवा पखवाड़ा, इलेक्टोरल रोल और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारामूला दौरे की तैयारियों का जायजा लेना था. इस मौके पर जिला सदर बांडीपोरा नसीर अहमद लोन और दीगर उनके साथ मौजूद थे. 1 महीना उन्होंने इस वोटर लिस्ट को दोबारा से बनाने के लिए उन्होंने जो करेक्शन होगी वो करेंगे और 25 नवंबर के बाद वो फाइनल वोटर लिस्ट देंगे. 25 नवंबर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा वो तकरीबन दिसंबर में आएगा. फिर हम सब जानते हैं दिसंबर और जनवरी फरवरी में यहाँ चुनाव नहीं होगा. हम आश्वस्त हैं कि मार्च अप्रैल में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा. हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का अब 5 तारीख को जो कार्यक्रम बारामूला में हो रहा है, इलाकों से उस सभा में, उस जलसे में लोग पहुंचे हैं. वोटर लिस्ट में नए वोटर्स के नामों के इंदराज पर DC कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में एक मीटिंग मुनक्किद की गई. मीटिंग की सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अल्ताफ अहमद ने की. इलेक्शन अफसर ने नए वोटरों के इंदराज का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी. नोडल अफसर रियाज अहमद भट्ट ने इलेक्शन अफसरों को नए इंदराज की जानकारी दी.
मीटिंग में तहसीलदार और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अल्ताफ अहमद ने नए वोटरों के इंदराज के लिए स्कूलों और कॉलेजों में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद कराने की अफसरान को हिदायत दी ताकि कोई भी वोटर का नाम छूट न जाए। 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कुपवाड़ा की हैं, उनके EROs इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स समरी रिवीजन गालिबन 3 साल के बाद हुआ। इसमें कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 10,17,000 के आसपास प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है जो 1 जुलाई 2022 तक है, जिसके अगेंस्ट में 18 प्लस 6.5 लाख के आसपास वोटर्स होने चाहिए, जिसमें हमारे वोटर इस वक्त रजिस्टर्ड जो है यहाँ पर हैं 4.5 लाख हैं। 2 लाख का गैप है जिसको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर सर उस गैप को पूरा करना चाहते हैं। उसी रिलेटेड आज की ये मीटिंग थी कि ये गैप हमें 25 तक कवर करना है। अवेयरनेस कैंप्स करो, अवेयरनेस क्लब्स करो और होर्डिंग्स और जितने भी उनके एनरोल स्टूडेंट्स हैं और उनका एक लिस्ट बनाओ, उनके फार्म 6 उनको इशू करो फार्म। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक ने नेशनल हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों को रोकने के हवाले से प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने ट्रकें रुकवाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कश्मीर की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले हर मसले को लेकर वो हुकूमत के पास जाते रहे हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जब भी प्रेसिडेंट बात करेगा तो किन से बात करेगा, एक हाईएस्ट लेवल पे बात करेगा। और मेरे ख्याल से जब भी अच्छा है, ये पूरे ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हो रही है। देखिए हमारी इकॉनमी कितनी सफ़र किया हुआ है, ये सिर्फ कश्मीर चैम्बर ने आज तक हाईलाइट किया हुआ है और हमने उस लेवल तक हाईलाइट किया है हाईएस्ट ऑफिसेस तक। और आपने देखा होगा रिवाइवल पैकेज आ गया, उस रिवाइवल पैकेज को भी हमने कहा लोगों को कि इसमें कुछ कमियां हैं, वो भी हम गवर्नमेंट के सामने। कहने का मतलब है कि ये सारी बातें जब हम करते हैं तो मसला ये होता है कि भाई आज फ्रूट लेडन ट्रक्स हाईवे पे रुकी हुई थी, तो आज कहा गया कि ये शायद हमने मशवरा दिया है कि ट्रक्स को रोकिए। वो बात कैसे जिसमें हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त काम कर रहे हों एप्पल के साथ, तो ये कौन सा ऐसा इंसान होगा जो ये मशवरा देगा। हमें एक्यूज़ किया गया बहुत चीज़ों से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फ्रूट गाड़ियों की बिना खलल आमदरफ्त को यकीनी बनाने पर फ्रूट ग्रोवर्स और ताजिरों ने LG इंतजामिया और IG ट्रैफिक का शुक्रिया अदा किया है। वज़रे के गुज़श्ता दिनों में कौमी शाहराह पर फ्रूट गाड़ियों को रोके जाने के मामले के तूल पकड़ने के बाद इंतज़ामिया ने काजीगुंड के मकाम पर दरमानदा हज़ारों मेवा गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी है। ताजिरों और काश्तकारों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा दिनों में भी इसी तरह से उन्हें सरकार व इंतज़ामिया का ताउन हासिल होगा। उन्होंने मौके पे ऑर्डर दे दिया इनको, तब तक कोई अफसर घर नहीं जाएगा जब तक ये गाड़ियाँ क्लियर नहीं हो जाएंगी। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। ऑन स्पॉट डिसीजन देकर हमारी बहुत उन्होंने बड़ी परेशानी, लंबी परेशानी हल कर दी। मंडियों में माल इकट्ठे जाना हमारे लिए यहाँ सड़ने से बेहतर है, यहाँ माल रुकने से भी ज़्यादा खतरनाक हमारा है कि मंडियों में इकट्ठे माल जाना। जब ये गाड़ियाँ 2 दिन 3 दिन रुकती हैं, 4000 5000 फिर इकट्ठे जाती हैं, उससे भी सत्यानाश मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाती है माल में। 90 दिन का ये सीज़न है। हम ट्रैफिक हुकाम से, IG साहब से, बाकी दीगर हुकाम से, गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं बस ऐसे ही एकदम गवर्नमेंट करे कि जैसे परसों ने डिसीजन लिया वही हमारे लिए ठीक है। शुक्रगुजार है IG ट्रैफिक का, जो गाड़ियाँ हमारी रास्ते में रुकी थी बहुत दिनों से, उन्होंने उसका ऑर्डर दिया, वो सब गाड़ियाँ पार हो गई हैं। हम कहते हैं कि आइंदा भी ऐसा इकदाम उठाए ताकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो वक्त पर मंजिल पर पहुँच जाए। तो हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि आइंदा हमें ऐसी प्रॉब्लम न हो। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई रोज तक फंसे रहने के बाद हजारों की तादाद में ट्रक जम्मू पहुंच रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों, किसानों और सेब के कारोबारियों को जम्मू पहुंचकर बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जम्मू की सबसे बड़ी नारवाल फ्रूट में सेब के ट्रक मुसलसल पहुंच रहे हैं और सेब उतारने का काम लगातार जारी है। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक कई दिनों से फंसे रहने की वजह से ट्रकों में लदे सेब को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। क्या अपील करोगे प्रशासन से कि जो रास्ते में रुका रहता है?
रास्ते में अगर गाड़ी रुकता है तो इस तरह से किसान का भी नुकसान, इधर मालिक का भी नुकसान होता है और गाड़ी वालों का भी नुकसान होता है। इसलिए रास्ता अगर क्लियर मिले तो सब ठीक होगा और इस तरह से सबके सब परेशानी में पड़े हुए हैं, ऐसा परेशानी से दूर रहेंगे सब। वहाँ सिंगल गाड़ी निकलती है रामबन में, वहाँ थोड़ा टी लगा हुआ है, मशीन एक है, वहाँ पूरा ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पे थोड़ा लूज मलबा गिर रहा है, वहाँ मशीन एक ही LMT लगी होती है, वो अपनी मर्जी से चल रहा है काम, वो ध्यान नहीं देता है। हम भी सोचते हैं कि माल जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, किसानों का फ़ायदा ही होना चाहिए, जब पूरे साल का मेहनत है भाजी, बड़ा परेशानी होता है महाराज। अपील यही है हमारा, JNK में जो रोड है वहाँ पे पूरा ध्यान नहीं रखते हैं रोड का, उसी टाइम काम लगाते हैं जब कार्रवाई होती है, आगे पीछे टाइम नहीं दिया, टाइम टेबल बराबर नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। फंसी आती है वहाँ एक LMT लगती है मशीन, 2-4 मशीन होती है तो जल्दी प्रोग्रेस जल्दी निकलती है भाई जी। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मरकजी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया CDS मुकर्रर कर दिया है। वजारत दिफा ने बताया कि चौहान फौजी उमूर के महकमे में हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 40 साल तक खिदमात का तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने शिमाली कमान में बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। श्रीनगर के SMHS अस्पताल में वाक़ रेबीज क्लिनिक में कुत्ते के काटने के हर साल 5 से 6 हज़ार केस आते हैं। SMC श्रीनगर अभी तक भी कुत्तों की तादाद मालूम नहीं करा सकी है। कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी तशवीशनाक है, लेकिन SMC के ओहदेदार सिर्फ लोगों को रेबीज के खतरे से निकालने की बातें कर रहे हैं। GMC श्रीनगर ने रेबीज डे के मौके पर लोगों में आगाही पैदा करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। रेबीज से मुतासर होने वालों की मौत यकीनी मानी जाती है। ऐसे में कश्मीर में कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तिब्बी माहिरीन को तशवीश है। माहिरीन ने अपनी तहकीक नतीजे पेश किए और तकरीबन सभी कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी पर फिक्रमंद नजर आए। SMC ओहदेदारों का ये भी कहना है कि यह मसला काफी तशवीशनाक है, लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि श्रीनगर म्यूनिसिपल हुदूद में कुत्तों की तादाद कितनी है तो कहा जाता है कि श्रीनगर में सिर्फ 60,000 कुत्ते हैं। आपके पास वाकई कोई सेंसस है? नहीं, हमारे पास एज राइट नाउ वी डोंट हैव एनी सेंसस, बट वी अज्यूमिंग दिस assumption is based on a module published by Animal Welfare Board of India, which says the dog to human ratio is around 3:100, around 3% of the human population. मतलब नंबर कितना बनता है? वो लगभग 60,000 के करीब। लेकिन फिर भी हम इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एक थर्ड पार्टी से हम सेंसस करवाने जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि हम खुद सेंसस नहीं कर सकते, ये इट शुड बी डन बाय थर्ड पार्टी। GMC श्रीनगर में HOD कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर M सलीम खान का कहना है कि SMHS श्रीनगर में रेबीज क्लिनिक सालाना 5 से 6 हज़ार कुत्तों के काटे मरीजों का इलाज करता है। कुत्तों की दहशत का शिकार बनने वालों के ये आदाद शुमार निहायत ही तशवीशनाक है और ये सूरत हाल श्रीनगर शहर में कुत्तों की तादाद के SMC के तस्वुर की साफ तौर से नफी करती है। हर साल हमें 5,000 से 6,000 डॉग बाइट केसेस आ जाते हैं अपने क्लिनिक में। तो छोटे से बच्चे आ जाते हैं, ख़ास तौर पे जिनके सिर पे चोट लगी होती है, हाथों पे, मुंह पे लगी होती है, और अगर खुदा ना खास्ता वो चोट एक रैबिड डॉग की तरफ से होगी तो रैबीज़ होने के एहतमाल बहुत ज़्यादा हैं अगर हम वैक्सीन भी दें, क्योंकि रैबीज़ का वहाँ उस ज़ख्म से दिमाग तक पहुँचने में बहुत कम टाइम लग जाता है। और खुदा ना खास्ता ऐसी अमवात भी हो चुकी हैं जहाँ बच्चों में एंटी रैबीज़ वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ्स हुई है। SMC श्रीनगर के पास कुत्तों की नसबंदी ही वाहिद ऑप्शन है, लेकिन बल्दी इदारा उस मंसूबे भी कभी काम शुरू नहीं करा सका। श्रीनगर शहर के बहुत से इलाकों में लोग खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं, लेकिन SMC के एहलकार पिछले 2 सालों से उसी प्लान के बारे में बातें बताते हुए नहीं थकते हैं। लास्ट ईयर मैंने सुना था कि आप आउटसोर्स कर रहे हैं, आज की तारीख में आप वही कह रहे हैं कि आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हमने जो बिडर था उसने क्वालिफाई किया है, ये हमारे हाथ में नहीं। हम जब RFP फ्लोट किया तो उसके लिए बिड आनी चाहिए ना, पहले हम खुद नहीं कर सकते, तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। इस साल हमने 3 बार ये बिड निकाली, RFP निकाला, तब जाके अब तीसरे टर्न पे एक
संतुलन जी कल्याण वो जॉइंट वेंचर में भी वो कर रहे हैं, वो 3 एजेंसी आपस में मिलकर वो काम कर रही है, वो लोगों ने क्वालिफाई किया है। इंशाल्लाह दे विल बी गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एसएमसी अब भी टैंकपुरा सेंटर पर काम कराने में लगा हुआ है और चतरहुमा में एक और सेंटर कायम करने की बात हो रही है ताकि कुत्तों की नसबंदी के कामों को बढ़ाया जा सके। लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि कुत्तों की आबादी को रोकने का एसएमसी का ये तरीक़ेकार कारगर साबित होना मुश्किल लगता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से शब्बीर की रिपोर्ट। गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल लाइन्स के बैनर तले बडगाम में एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने एसटी जुमरे में आला ज़ात और मरात याफ्ता लोगों को शामिल किए जाने की मुखालफत की। इस मुजाहरे में पंचों, सरपंचों और दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सरकार ये दावा कर रही है कि वो हमारी मदद कर रही है, मगर ज़मीनी सतह पर गुज्जर बकरवाल का इस्तेहसाल हो रहा है। उन्होंने इंतबा दिया कि उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो सड़कों पर उतरेंगे। गुज्जर बकरवाल बरादरी के इन नुमाइंदों ने डीसी बडगाम को मेमोरेंडम पेश किया। नफरत की जो ये यहाँ वबा फैलाना चाहते हैं आप खिताए पीर पंजाल के अंदर और बिलखसूस कालमेंडर के अंदर, जो आपने यहाँ आपकी क़यादत में ये बातें हुई कि यहाँ गुजर और पहाड़ी लोग जो हैं आपने एक दूसरे के आमने सामने खड़े कर दिए। हमारा ये कहना है कि सभी लोग जो है हम भाई भाई हैं, हम सभी इकट्ठे रहना चाहते हैं, बड़े प्यार और मोहब्बत से पहले भी रह रहे हैं और आइंदा से भी रहेंगे। लिहाजा ये है कि ये जो कल एक नफ़रत का एक जो ये बीज बोया गया यहाँ, एक ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दी गई है, उस पर अफसोस हुआ और उसको हम कंडेम करते हैं। और गुजर बरादरी जो है उसके जो हकूक़ जो हैं वो महफूज रखते हुए, महफूज रख कर जो है अगर किसी को कोई और स्टेटस दिया जाता है तो मेरे ख्याल में किसी को ये एतराज़ नहीं होना। मेंढड़ में गुज्जर तबके पंच, सरपंच और दीगर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरपंच चौधरी नज़ीर हुसैन ने गुज़श्ता रोज़ रविंद्र रैना की रैली में डीडीसी मेंबर मेंढड़ के दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि एक अवामी नुमाइंदे को ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गुज्जर तबके के लोगों के हुकूक को महफूज रखते हुए पहाड़ी तबके को एसटी का दर्जा मिलता है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। नफरत की जो ये यहाँ वबा फैलाना चाहते हैं आप खिताए पीर पंजाल के अंदर और बिलखसूस कालमेंडर के अंदर, जो आपने यहाँ आपकी क़यादत में ये बातें हुई कि यहाँ गुजर और पहाड़ी लोग आपने एक दूसरे के आमने सामने खड़े कर दिए। हमारा ये कहना है कि सभी लोग जो है हम भाई भाई हैं, हम सभी इकट्ठे रहना चाहते हैं, बड़े प्यार। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कंडी कुपवाड़ा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। 2 मंजिला इमारत आग की नज़र हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि हादसे में लाखों रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचा है। इस इमारत में एक कपड़े की दुकान का सारा सामान तबाह हो गया। मुतासरीन ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। यह आव सोद कहत नार दिन पता ही न कि अस किराए पे दुकान कि अत किराए दिवान तो अस जमीन वमीन खुनमुत किराए पे बिहत अत हेदन अत दुक सोद कह नार पता ही गवर्नमेंटस अपील कर करू मदद कि कह सहर अम बगैर कस कर यो जैन अत 10 बोझ पका। जी देखते ही रह गए कि आग इतनी भयानक हो गई। जो भी ऊपर इनका सामान था, यहाँ पे एक शॉप था कटिंग एंड टेलरिंग का, दूसरा शॉप था वो हेयर कटिंग का शॉप था, तो दोनों तबाह हो गए। यहाँ पे वर्दन 2-3 इसने तैयार करके रखे थे शादी के लिए, जो इनको अभी अपकमिंग वीक में देने जा रहे थे उनको, तो वो भी जल के राख हो गए यहाँ पे। तो यही चाहते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, कि वो इन लोगों की तरफ देखिए, इनको इंसाफ दिलाए। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुरेज बांडीपुरा के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कशॉप ब्लॉक का इफ्तिताह किया। डॉक्टर सामून ने महकमे स्किल डेवलपमेंट से मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की कि वो मौसम सरमा में महकमे सेहत के ताउन से ITI के तलबा के लिए सरमाई खेलों के हिस्से के तौर पर स्कीइंग कोर्स मुनक्किद कराएं। इस मौके पर डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार, SDM गुरेज, सुपरिंटेंडेंट ITI और दीगर मौजूद रहे। कश्मीर में जाने वाली हिरणों की एक नायाब नस्ल हांगुल अब मादूमियत का सामना कर रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से हांगुल को मादूम होने से बचाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अब भी इस नायाब नस्ल को बका के अलावा कई दीगर मसाइल का सामना है। सरकार की जानिब से हांगुल को बचाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन के साथ नई कोशिशें शुरू की गई हैं। दाचिगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में हांगुल का रेवड़ एक नायाब नजारा पेश करता है। दाचिगाम दुनिया में हांगुल का वाहिद मस्कन है। इनमें से कुछ गांदरबल के वांगत और त्राल की शिकारगाह में भी मौजूद हैं। हांगुल को पहले यूरोपीय सुर्ख हिरणों की एक झेली नस्ल के तौर पर समझा जाता रहा, लेकिन अब यह साबित हो गया है कि हांगुल की नस्ल सिर्फ कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर महकमे जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की 2021 में आखिरी सेंसस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 261 हांगुल बाकी बचे हैं। अगरचे 2019 के बाद तादाद में थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन इस अहम जानवर को अब भी बका के खतरे का सामना है। दाचिगाम के बालाई इलाकों में चरागाहों का इस्तेमाल चीते और कुत्तों का शिकार बनने की वजह से हांगुल को खतरा हो गया है। हांगुल की आबादी में जिंदा रहने के लिए मौजूद आबादी में फीमेल हांगुल का तनासब बहुत कम है। डॉक्टर खुर्शीद ने इसके पेश नज़र हांगुल की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंजर्वेशन प्लान भी तैयार किया है। फीमेल फॉन रेशो बहुत ही कम है। इट इज़ अराउंड 9 to 15 फॉन्स पर 100 फीमेल, वो बहुत ही कम है। जो अगर आइडियल पॉपुलेशन देखा जाए, जैसे रेड डियर की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 में से 80 फीमेल्स जो है वो ब्रीड होते हैं हर साल। तो यहाँ पे तो अगर हम ये देखेंगे कि अगर 20 तक भी है तो वो बहुत ही कम है। जब वो पॉपुलेशन तक आ जाती हैं उसके बाद वो उनका सर्वाइवल टू अडल्टहुड, दैट इज़ जहाँ पे लेपर्ड काम करता है, कल्प्रिट, वो फॉन्स को खाता है। उनको अडल्टहुड तक पहुँचाने में लेपर्ड, डॉग, दे प्ले ए
very detrimental road. 20वीं सदी के रिकॉर्ड के मुताबिक कश्मीर में हांगुल की तादाद 3 से 5,000 के दरमियान थी। महाराजा हरि सिंह की तरफ से तैयार करदा शिकार का नक्शा किशन गंगा के किरण से लेकर लोलाब वादी तक हांगुल की तकसीम को जाहिर करता है। बांडीपुरा, तुलेल, बालतल, आरवू, त्राल और किश्तवाड़ के इलाकों में हांगुल अच्छी खासी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन अब हांगुल सिर्फ दाचिगांव पार्क तक महदूद है। ताहम 2021 के सेंसस में स्कॉट्स के मुहक्किकीन ने गांदरबल और शिकारगाह त्राल के 2 इलाकों में हांगुल की एक छोटी आबादी पाई, जो कि एक खुश आइंद बात है। जो दाची गांव के अलावा जो अर्लियर लैंडस्केप्स रहा करें, जिनको रेलिक हैबिटेट्स बोलते हैं, जैसे शिकारगाह त्राल है, जैसे वांगत कंजर्वेशन रिजर्व्स है, उसमें हमें अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। हिरणों के इस अहम और मुनफरद नस्ल के मादूम होने के खतरे को मद्देनजर रखते हुए IUCN की जानिब से शिकारगाह में अफजाइश का मरकज चलाने के लिए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ताउन फराहम किया है। In the situation with the Hangul, because the numbers are so low, XC2 has become an option that should be considered and is being considered. We need a safety population. With most of your deer living in one national park, what happens if disease outbreaks there or some sort of crisis in the management that reduces that population, then you have no Hangul. So by bringing some into captivity and being able to breed them in a scientific way, you'll have a safety population that if everything works successfully, you can reintroduce those into other forests. If there's a crisis and the population here disappears, you have that safety population in captivity. I think this is a good safety option to bring some of the animals into captivity while you try to increase the natural population. हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई वर्षों से बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं और जम्मू कश्मीर में एक खुसूसी सेव हांगुल प्रोग्राम भी शुरू किया गया। साबिक़ सितु अफजाइश अगरचे हांगुल की अफजाइश के लिए काबिल बहस मौजू है, लेकिन माहिरीन की जानिब से हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे एक मौसर इक़दाम समझा जा रहा है। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले हांगुल की नायाब नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए सरकार और मुतल्लिक़ा महकमा जंगी पैमाने पर इक़दाम उठाएंगे ताकि दाचिगाम नेशनल पार्क की जीनत और मुनफरद हैसियत को बरकरार रखा जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। मेंढर के सरहदी इलाके डबराज में पुल बन जाने से आवाम को राहत मिली है। यहाँ लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मकामी लोगों ने महकमे PMGSY और LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना है कि 1976 से लेकर 2022 तक फुट ब्रिज का इस्तेमाल करते रहे थे। पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता था। यहाँ से कोई गाड़ी का इंतज़ाम ना था, लिहाजा हम गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ब्रिज इस फार फ्लंग एरिया को बनाया है। और साथ में ये अपील करते हैं कि जो 5 किलोमीटर रोड बनी है, इसमें अगर 2 या 3 किलोमीटर रोड आगे और बन जाए तो वो ऊपर जाके डिफेंस रोड से जो कनेक्ट हो जाए तो कुछ हमारी वार्डें जो वो भी कनेक्टिविटी के लिए रहती हैं, कुछ शोई में कोई फ़ायदा हो जाए, ऊपर आर्मी के लिए भी फ़ायदा हो जाए। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि 3, 3.5 या 4 किलोमीटर रोड जो है इसको आगे और भी कनेक्ट किया जाए। LOC एरिया है ये, इसके अंदर कोई कैजुअल्टी हो जाती या कोई और नुकसान हो जाता, शेलिंग में हो जाता या कोई बीमार हो जाता, डिलीवरी केस होता, उसको हॉस्पिटल में ले जाने से पहले ही दम तोड़ देते थे। लिहाजा इस पुल बनने से हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। सोनावारी इलाके के परंग गांव में एक सड़क की तामीर को नामुकम्मल ही छोड़ दिया गया। अधूरी सड़क से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस रोड की तामीर पूरी करने का मुतालबा किया है। उधर महकमे R&B के एक ओहदेदार ने बताया कि इस काम में ठेकेदार की वजह से ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सड़क का काम शुरू नहीं करने पर मुतल्लिका ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। रोड यपर किन रूलर करान कहें परेशान कर बेमार गना नखस पे पकन यपर कहें पकित टाइम गो अत लगभग जरियत गई ना कहीं ना यमुनी कह गुलाम हसन वगे नाव बहुत रोजान ये वन गोंड प्रांगस
یتھ ترٛٲوٕکھ اَسہِ روٗڑ حظ ییٚکیٛاہ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ روٗڑ ترٛٲومٕژ یَتھ گٔے 2 رٮ۪تھ حٲصِل گٔے یَتھ لگ بگ مگر کانٛہہ توجہ چھُنہٕ یِوان یَتھ کُن دِنہٕ یور گژھِ مطلب یور چھِنہٕ یِم حُکُم یِم وٕنکیٚنٕکۍ وقتٕکۍ حٲکِم چھِنہٕ یور کُن یَتھ کُن توجہ دِوان کِہیٖنۍ بٮ۪مار اگر گژھِ سُہ چھُ پَکناوُن اَسہِ کھۄنہِ کیتھن یوٚت حظ قدلس تامَتھ. मरहूम गुलाम नबी फ़राक की याद में आज टैगोर हॉल श्रीनगर में यौम फ़राक मनाया गया. फ़राक एक हिंदुस्तानी कश्मीरी शायर, मुसन्निफ़ और माहिर तालीम थे. उन्होंने एक माहिर तालीम की हैसियत से मुआशरे के तमाम तबक़ात का मयार तालीम बढ़ाने की कोशिश की. इस तकरीब में मुख्तलिफ नामवर अदीब, मुसन्निफ़ीन, शोरा ने शिरकत की और इनकी खिदमात को सराहा गया. याद में उनकी बरसी मनाई जा रही है. फ़राक साहब एक ऐसा नाम है जो एक मंजे हुए कलमकार हैं, एक शनावर अदीब हैं, जो उन्होंने नक्काद की हैसियत से भी काम किया है, मुतरजम भी हैं, वो ट्रांसलेटर भी हैं और तख्लीक़कार भी हैं. वो अंग्रेज़ी अदब पे भी गहरी नज़र रखते थे, उर्दू अदब पर भी और कश्मीरी अदब पर भी. मेरा मानना है, आज मैंने एक पेपर उनकी नातगोई के हिसाब से पढ़ा है, हालांकि बहुत कम उन्होंने नातगोई की है, लेकिन जितना उन्होंने लिखा है वो किसी से कम नहीं है. वो आला पाए के एक नातगो भी हैं और एक तख्लीक़कार भी हैं, शायर भी हैं. एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख अखलाक इनकलाबी ने रहबर तालीम स्कीम के तहत काम कर रहे असातिज़ा के लिए एक जामे ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार करने की अपील की है. मुतल्लिक़ा तालीम के आला हुक्काम से ये गुजारिश की गई है. शेख अखलाक ने बताया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होने की वजह से रहबर तालीम असातिज़ा को सख्त मुश्किलात का सामना है. रहबर तालीम स्कीम के तहत जो असातिज़ा तैनात हुए हैं उनके हक़ में अभी तक कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनी है. वो एक ही स्कूल में 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी फेडअप हो चुके हैं. और साथ ही साथ जो हमारी बहनें इस स्कीम के तहत अपॉइंट हुई हैं और उनकी शादियाँ दूसरे हुई हैं, ट्रांसफ़र न होने की वजह से वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं. निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी इन असातिज़ा के हक़ में बनाई जाए. सेंट्रल स्कूल त्राल में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया. कॉन्फ्रेंस में इलाक़े त्राल के असातिज़ा की बड़ी तादाद की. कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अमीन खान के अलावा फोरम के दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे. इस तकरीब के दौरान नई तालीमी पॉलिसी पर तफसीली बहस की गई. सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. तकरीब के दौरान ZEO त्राल डॉक्टर GM भट्ट को अलविदाई पार्टी भी दी गई. अफसरान अपने टीचर्स के खिदमात को यहाँ सराहें और उनके अच्छे अकदाम जो हैं उनको अपनाएं, और ताकि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो हमारी लर्निंग गैप्स है, जो हमारा सिस्टम है इस वक्त, उसमें वर्क का बढ़ावा हो जाए. हमें उसमें ये चीज़ें सामने आ जाएं कि जो हमारा बच्चा है वो हमारी प्रायोरिटी है, ताकि हमारी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ खाली हैं हम उनके लिए लावारिस ना रहने दें, उनके लिए वारिस पैदा करें. और वो वारिस जो उनके हैं वो हमारी क्लासरूम में इस वक्त है. हमें अपने असातिज़ा को इस चीज़ का एहसास देना है कि इन वर्सा को आप आगे लाइए, इनको तराशिए, इनको निखारिए. ये इस वक्त हमारी एजुकेशन काउंसिल का एक अहम मुद्दा है. एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत श्रीनगर घंटाघर लाल चौक से स्केटिंग रैली रवाना की गई. जस्टिस अली मोहम्मद ने स्केटिंग रैली को रवाना किया. रैली का एहतमाम राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल और वाराणसी रोलर स्पोर्ट्स ने किया. कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्केटिंग रैली निकाली जा रही है. ये सफ़र 13 रियासतों के 10 शहरों और देहात से होकर 25 दिसंबर को कन्याकुमारी में अख्ताम को पहुंचेगा. इसका मकसद टूरिज़्म को फ़रोग़ देना, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना और माहौलियात को बचाना है. ये यात्रा कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग पे 2.5 इंच के पहिए पे एक रोमांचकारी और साहसिक यात्रा है, जिसमें मातृ शक्ति ज़्यादा है. और हमारा मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और शिक्षा है, जो कि लोग अवेयर हो. इसको हम 25 दिसंबर को कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक पे इसका समापन होगा. इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इनकी फिजिकल फिटनेस जो भी रहेगी, जो भी कोई इंजरीज रहेगी, हम पूरा कंट्री में फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी IAP अंडर प्रेसिडेंट संजीव कुमार झा सर, हम पूरा इनको योगदान देंगे. और हर जगह पे जहाँ पे भी इनको हमारी कोई ज़रूरत होगी फिजियोथेरेपी की, हम वहाँ पे इनका पूरा हेल्प करेंगे. डिग्री कॉलेज शोपियां में स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकाद किया गया. टूर्नामेंट में लड़कियों और लड़कों की 4 टीमों ने हिस्सा लिया. ज़िला तरक्याती काउंसिल के वाइस चेयरमैन इरफान मनहास और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज शोपियां तारिक अहमद ने मैच का इफ्तिताह किया. टूर्नामेंट का असल मकसद नौजवानों को मनशियात से बचाना है.
ऑर्गेनाइजर बिलाल अहमद का कहना है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, जितना भी स्पोर्ट्स में इनका जो है रुझाव होगा, जितना भी टाइम इनका स्पोर्ट्स में जाएगा, उतना ये जो मंशियात की जो बीमारी इस वक्त फैली हुई है उससे दूर रहेंगे। और हम चाहते हैं कि ये अपना जो कीमती वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाएं, स्पोर्ट्स। कश्मीर में पिछले 2 सालों में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ख़वातीन के लिए एक संगीन मसला बनकर उभरा है। औरतों पर पुरतशद्दुद के आम केसों पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं। घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद की हलाकत की खबर सुनते ही आम लोगों का गुस्सा एहतजाज में बदल जाता है। देखिए फजा ज़ैनब की ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आजकल तमाम शोबों में ख़वातीन फ़ाल दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में ख़वातीन बहुत ज़्यादा इनफरादियत इख्तियार कर चुकी हैं। श्रीनगर में DSP साइबर के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को संजीदगी से लेता है और बरवक्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। इन द प्रेजेंट टाइम्स जब औरतें पढ़ लिख चुकी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हैं, अपने हकूक़ के बारे में जानती हैं, तो दे स्पीक आउट अगेंस्ट दीज क्राइम्स। वो आवाज़ उठाती हैं, वो आगे आती हैं। जब भी कोई हेनस क्राइम या सीरियस क्राइम या हाईली सेंसिटिव नेचर का क्राइम होता है किसी लेडी के ख़िलाफ़, तो उस पर हमेशा फास्ट ट्रैक किया जाता है। और जैसे आप एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जब भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है, वेदर इट्स से एन एसिड अटैक इन द रिसेंट टाइम्स और रेप और एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट, उस पर तुरंत तभी कार्रवाई की जाती है, तभी हमें डायरेक्शंस मिलते हैं कि इसको सीरियसली लिया जाए और तभी उस पर एकदम एट द वेरी इंस्टेंट फास्ट ट्रैक किया जाता है। सो वी फ्रॉम आवर एंड डू टेक इट सीरियसली। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद में गुज़िश्ता 2 सालों से 40% तक इजाफा हुआ है। कश्मीरी माशरे में समाजी बंदिशों और सकाफती व मजहबी इक़दार के गलत बहानों की वजह से ख़वातीन को रोज़ ही तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि परेशान कुन बात है। ख़वातीन के लिए काम करने वाली तंजीमों ने मशवरा दिया है कि ख़वातीन को इंसाफ के हुसूल के लिए वकला से रुजू करना चाहिए। पिछले 2 साल में कश्मीर में डोमेस्टिक वायलेंस का जो नंबर है वो 40% इंक्रीज़ हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट एक रीज़न है, बेकारी। जब आदमी कुछ कर नहीं रहा है, वो घर पे बैठा हुआ है, हर छोटी छोटी बात पे लड़ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस डॉवरी को लेके होती हैं कि आपके घर से ये नहीं आया, आपके घर से वो नहीं आया, लड़की पे जुल्म होता है, वो सहती है। उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केसेस हैं हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसमें लड़कियां सुसाइड भी करती हैं, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को मारा गया है, ससुराल वाले दोबारा जलाया है, जहर दे के मारा है या उन्होंने सुसाइड किया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड की वजह से ये सब चीज़ें एड ऑन करती गई। घरेलू तशद्दुद एक इंतहाई भयानक मसला है, क्योंकि माशरा अक्सर ख़वातीन को उस पर किए गए तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराता है। ऐसे वाक़यात इतने आम होते हैं कि ख़वातीन की अक्सरियत खुद पर तशद्दुद वाक़यात को एक मामूली वाक़या समझती हैं। एडवोकेट अल्ताफ मिराज ने एक हैरान कर देने वाली रुझान का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब सिर्फ बीवियों और बहुओं को ही घरेलू तशद्दुद का सामना करना नहीं पड़ता है, बल्कि अब माएँ भी अपने बच्चों के हाथों घरेलू तशद्दुद का सामना कर रही हैं। जो मामलात है बड़ी ही संगीन नौइयत के दर्ज हो रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इनफैक्ट मदर्स जो हैं, मदर्स अपने बच्चों के ख़िलाफ़ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने आ जाती हैं, जहाँ पे उन्होंने शिकायत करी होती है कि उनके बच्चों ने उनके साथ घरेलू तशद्दुद किया, उनको जिस्मानी अजियत दी, उनको माशी तौर तंग तलब किया और उनको जहनी तौर परेशान किया। इसमें जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स एक औरत को जो कि इस तशद्दुद का शिकार हो चुकी होती है, उसको रहने के लिए घर का ऑर्डर दे सकते हैं, उसको रोज़ाना जो उसको खर्चे आते हैं उसको मेंटेनेंस ऑर्डर मिल सकता है। माहिरीन मानते हैं कि सबसे पहले हमें घरेलू तशद्दुद को एक मसले के तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा और एक इकाई की शक्ल में मुआशरे को ख़वातीन के खिलाफ जाबिराना इक़दामात की जिम्मेदारी कबूल करने की जुर्रत पैदा करनी होगी। औरतों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली ऐसी तंजीमों की अशद ज़रूरत है जो वादी में मुख्तलिफ किस्म के इदारों के साथ ताउन करने के काबिल हों। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट।